شامل کرتے ہیں صادق آباد سے ذوالفقار علی مستوئی چیف سردار محمد بخش خان مستوئی کی بلوچ کلچر ڈے پر بلوچ بھائیوں کو مبارکباد۔ بلوچستان کی ثقافت امن کی ثقافت ہے۔ آج پنجاب میں بھی بلوچ کلچر ڈے منایا جا رہا ہے۔ میں آج کے دن کی مناسبت سے اپنے بلوچ بھائیوں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ بلوچ کلچر ڈے منانے کا مقصد محبت، بھائی چارے اور یگانگت کو عام کرنا ہے اور بین الصوبائی ہم آہنگی کو فروغ دینا ہے۔ بین الثقافتی ہم آہنگی کو فروغ دینا وقت کا تقاضا ہے۔ اپنی ثقافت کو یاد رکھنے والی قومیں ہی ترقی کرتی ہیں۔ پاکستان میں بسنے والی تمام قومیں ایک لڑی میں پروئی ہوئی ہیں۔ سردار محمد بخش خان مستوئی پاکستان کی دیگر ثقافتوں کی طرح بلوچ کلچر میں بھی بہت محبت اور حب الوطنی کے خد و خال نمایاں ہیں۔ بلوچستان کے ثقافت اپنی ایک منفرد حیثیت رکھتی ہیں اور بلوچستان تہذیب و تمدن کا مسکن ہے۔ سردار محمد بخش خان مستوئی بلوچ کلچر ڈے کی طرح دیگر ثقافتوں کے دن بھی بھرپور طریقے سے منائیں گے۔ خبر شامل کرتے ہیں صادق آباد سے ذوالفقار علی مستوئی کی رپورٹ کے مطابق شہریوں نے ماہی چوک ولانا روڈ کی مرمت کا مطالبہ کیا۔ ماہی چوک سے لے کر دائیں موڑ ولانا تک روڈ انتہائی خستہ حالی کا شکار ہے۔ ٹوٹ پھوٹ اپنی جگہ پتھر بھی باہر نکل آئے جسے لاوارث روڈ کہا جاتا ہے، تو دوسری طرف مقامی آبادی کے لوگوں نے بھی غیر قانونی موقع ڈال کر رہی صحیح کسر پوری کر دی۔ منتخب نمائندوں نے مذکورہ روڈ کی تعمیر و مرمت سے منہ موڑ لیا۔ نہ ہی منتخب نمائندے اور نہ ہی شوگر ملز والے شوگر سیز کٹوتی کے تحت مرمت کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ پیدل چلنا بھی مشکل ہو گیا۔ آئے روز گاڑیاں پنکچر ہونے سے کاشتکاروں کو نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے۔ کاشتکاروں کو شوگر ملز تک گنا اور زرعی اجناس منڈی تک پہنچانے میں انتہائی دشواری کا سامنا ہے۔ شہری سراپا احتجاج ہیں۔ ترقی پسند زمیندار ذاکر حسین المانی، شاہ علی خان، نصیر عباسی، ریاض احمد اور دیگر نے وزیر اعلیٰ پنجاب ڈپٹی کمشنر رحیم یار خان سے روڈ مرمت کروانے کی مطالبہ کیا، ورنہ احتجاج کرنے پر مجبور ہوں گے۔ خبر شامل کرتے ہیں فقیر آباد سے عمران علی مہر کی رپورٹ کے مطابق پشاور سانحہ کے خلاف شیعہ علماء کی جانب سے گنبد فقیر آباد مسجد علی رضا علیہ السلام سے ریلی نکالی گئی۔ ریلی شہر کی مختلف چوک چوراہوں سے ہوتی ہوئی فقیر آباد پریس کلب پہنچ کر احتجاج کیا۔ ریلی کی قیادت جاوید علی بھٹی، سکندر علی گوپانگ اور عطا محمد باقری کر رہے تھے۔ اگر حکومت ہماری حفاظت نہیں کر سکتی تو ہمیں اجازت دی جائے، ہم اپنے ہاتھوں میں عباس علم کی جگہ ہتھیار اٹھا لیں۔ ہمارا حکومت پاکستان سے مطالبہ ہے کہ پشاور سانحہ کے ظالموں کے خلاف فوراً قانونی کارروائی کی جائے اور انہیں گرفتار کیا جائے۔ کرتے ہیں ہم ان سے سوال ایک کرتے ہیں کہ آیا جب بھی تاریخ اسلام میں ہم نگاہ کرتے ہیں جو بھی حملہ ہوا ہے، جو بھی دہشت گردی ہوئی ہے، وہ فقط شیعہ نے حیدر کرار سے ہوئی ہے۔ آخر کیوں؟ جہاں بھی دیکھو مجلس اعزاء ہے وہاں بم بارودی، جہاں بھی دیکھو جلوس ہے وہاں بم بارودی، جہاں بھی شیعہ نماز جمعہ پڑھ رہے ہیں وہاں بم بارودی۔ آخر کیوں؟ اگر حکومت ایسا کام نہیں کر سکتی، حکومت ہماری حفاظت نہیں کرتی، تو ہمیں اختیار دیا جائے۔ جس ہاتھوں پہ پرچم عباس آ سکتا ہے اس پر ہتھیار بھی آ سکتے ہیں۔ جس طرح مومنین حسینیت پہ اپنا سر کٹا سکتے ہیں اسی طرح اپنی حفاظت بھی کر سکتے ہیں۔ حکومت سے پاکستان سے ایک ہی مطالبہ ہے کہ جو بھی قاتل پشاور ہیں ان کو ظاہر کیا جائے، ان کو سزا دی جائے۔ ریاستی ادارے کہاں ہیں؟ حکومت کہاں ہیں؟ سیکورٹی کہاں ہیں؟ فورسز کے افراد کہاں ہیں؟ اور یہ گرفتار کرنے والے افراد کہاں ہیں؟ اور آج کیوں ظالموں کو گرفتار نہیں کر رہے ہیں اور مظلوموں کے ساتھ تعاون کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کیا قرآن کا انہوں نے نہیں سنا؟ قرآن نے کہا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ نیکی کے کام میں تعاون کرو اور برائی کے کام میں تعاون نہ کرو۔ یہ مظلوموں کو ساتھ دینا نیکی کا کام ہے اور ان ظالموں کا ساتھ نہ دینا یہ بہت اچھا کام ہے۔ ہمارا حکومت سے پرزور، ریاستی اداروں سے پرزور مطالبہ ہے شیعوں کے جان کو محفوظ بنایا جائے، مظلوموں کے جان کو محفوظ بنایا جائے، پاکستانیوں کے جان کو محفوظ بنایا جائے۔ ہم شیعہ نے حیدر کرار پاکستان کے چاہنے والے ہیں، پاکستان سے محبت کرتے ہیں، وطن سے محبت کرتے ہیں، دہشت گردی سے نفرت کرتے ہیں۔ تو جب دہشت گردی سے ہم نفرت کرتے ہیں، مظلوموں کے حامی ہیں، تو پھر مظلوموں کو ساتھ دیا جائے اور حکومتی ادارے آئیں، ریاستی ادارے آئیں اور امن امان کی صورتحال کو یقینی بنایا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے قائدین، ایسا نہ ہو کہ ہمارے بزرگان ہمیں حکم دیں کہ اپنے سر کٹوانا ہے۔ ہم سر کٹوانا جانتے ہیں اور ہمیں کٹوانا آتا ہے، ہاں اس لیے کہ ہم حسین کے ماننے والے ہیں، اس لیے کہ ہم حسین کے چاہنے والے ہیں۔ ہم نے کبھی بھی سر کٹوانے سے دریغ نہیں کیا ہے۔ انشاءاللہ امید ہے ان اداروں سے، ریاستی اداروں سے کہ ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے، ان کو گرفتار کریں گے، پاکستان میں امن امان
रुख करते हैं डेरा गाजी खान का, जहां से हमारे नुमाइंदे रहमतुल्लाह खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक डेरा गाजी खान की 8 कौमों का इत्तेहाद बंदवानी, खोसा, बदोई, लगारी, हब्तानी, होताती, हमदानी, भंड और चांडिया बरादरी ने बल्दियाती इलेक्शन पर अपना मुश्तरका उम्मीदवार लाने के लिए मुशावरात करके अपना उम्मीदवार लाने का फैसला कर लिया। इस हवाले से डेरा गाजी खान के जुमला बरादरियों ने एक मुशावराती नशिस्त के साथ इस बात पर जोर दिया कि आने वाले बल्दियाती इंतखाबात के लिए उम्मीदवार के नाम पर इत्तफाक का इजहार करते हुए मुशावराती अमल जारी रखकर आइंदा चंद रोज में नाम सामने लाने पर इत्तफाक का इजहार किया। तो दूसरी जानिब डेरा गाजी खान में शुरू होने वाली सियासी सरगर्मियों ने सियासत के दौर दीवार भी हिला कर रख दिए। कई अशरों बाद किसी भी उम्मीदवार का यूं सामने लाना डेरा गाजी खान की सियासत में एक हलचल और सियासी दर्जा हरारत को बढ़ा कर रख दिया है। तनकोट में सानिया पेशावर में नमाजियों के बेईमाना कत्ल आम के खिलाफ मजलिस वहदत मुस्लिमीन और शिया उलमा कौंसिल की जानिब से रैली निकालकर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। पेशावर के मजलूमीन की हमायत, जालिमों के खिलाफ एहतजाजी रैली मदरसा अरशादुल सकलैन से घंटाघर चौक तक निकाली गई। घंटाघर चौक पर एहतजाजी मुजाहिरा दिया गया। मुजाहिरीन ने हुकूमत की नाअहली के बायस पेशावर में होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। मुजाहिरीन ने हुकूमत से मुतालबा करते हुए कहा कि पेशावर बम धमाके के जिम्मेदारान के खिलाफ फिलफौर फौजी ऑपरेशन किया जाए ताकि पेशावर मस्जिद के अंदर शहीद होने वाले नमाजियों के लवाहकीन को इंसाफ मिल सके। कामों की रोड एक्सीडेंट में एक खातून शदीद जख्मी। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नवीद गुराया की रिपोर्ट के मुताबिक कामों की बाइक में चादर आने की वजह से एक मामर औरत शदीद जख्मी हो गई। रेस्क्यू जराये के मुताबिक सोहावा गांव के करीब रोड एक्सीडेंट पेश आया और एक मामर खातून की चादर बाइक में आने की वजह से शदीद जख्मी हो गई। रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर जख्मी औरत को फर्स्ट एड देकर सिविल अस्पताल कामों की मुंतकिल कर दिया। एक और खबर शामिल करते हैं कामों की से। एक नामालूम शख्स की लाश बरामद हुई। मोहम्मद नवीद गुराया की रिपोर्ट के मुताबिक कामों की घनिया रोड पर एक नामालूम शख्स की लाश बरामद हुई। कामों की नामालूम मिलने वाली लाश गोबर से बरामद हुई। लाश की शनाख्त ना हो सकी। गुजरांवाला से CIA पुलिस ने डेड बॉडी गोबर से बाहर निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दी। डॉक्टर्स की रिपोर्ट के मुताबिक मरने वाले शख्स को तकरीबन 7 दिन पहले मारकर गोबर में दबा दिया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद तफसीली रिपोर्ट जारी कर दी जाएगी। और इधर मामा ने खसूसी CM पंजाब MPA PP 106 मलिक उमर फारूक ने वेंटिक्स मिलकर खसूसी दौरा किया और जहां पर उनका वालहाना इस्तकबाल भी किया गया। समाजी शख्सियात मलिक मंसूर अहमद, मलिक महमूद अहमद ऑनर मिल्स ने मामा ने खसूसी को फूल पेश किए। इस मौके पर मलिक मंसूर और मलिक महमूद के बड़े भाई मलिक मकसूद अहमद जो गुज़श्ता माह इंतकाल कर गए थे, उनकी मगफिरत के लिए खसूसी दुआया तकरीब और महफिल मेलाद का भी एहतमाम किया गया। मलिक उमर फारूक ने फ्रिम को दरपेश मसाइल के हल का ऐलान किया, जिनमें सरफहरिस्त नकासी आपका मसला है। मलिक मोहम्मद फारूक ने ताजिर मलिक की मौशियत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं और ताजरों के मसाइल का हल हमारी अवलीन तरजीह है। मेजबान मलिक मंसूर अहमद ने मलिक उमर फारूक का शुक्रिया अदा किया और मलिक उमर फारूक अवाम दोस्त लीडर हैं। उन्होंने रिकॉर्ड तरक्याती काम मुकम्मल करवाए। इंशाल्लाह हम भी मलिक उमर फारूक की भरपूर हिमायत का ऐलान करते हैं। इस मौके पर मलिक बाबर भुट्टो, मलिक उस्मान, शहजाद मजीद और दीगर भी मौजूद थे। गोशरा में जिसकी लाठी उसकी भैंस। बासर अफराद ने झंग रोड पर वाक़या रॉयल गार्डन का सरकारी रास्ता रोक दिया। रॉयल गार्डन के रिहायशियों को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना। जी बिल्कुल, गोशरा में जंगल का कानून, जिसकी लाठी उसकी भैंस। गोशरा झंग रोड पर वाक़या रॉयल गार्डन का सरकारी रास्ता बासर अफराद ने बैर लगाकर बंद कर दिया। बासर अफराद ने रॉयल गार्डन की तरफ जाने वाले रास्ते पर असले से लेस गार्ड्स बैठाकर रिहायशी अफराद को रोकने लगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रॉयल गार्डन के रिहायशियों ने कहा कि अरसा दराज से हमारे इस गार्डन में मकान और प्लाट हैं, हम इस रास्ते से ही गुजारा करते थे, लेकिन अब हमको बासर अफराद गन पॉइंट पर रोकना शुरू कर दिया। दूसरी जानिब रॉयल गार्डन के मालिक इरफान बेग ने कहा कि ये सरकारी रास्ता है और हमें इससे और ये बासर अफराद भत्ते का मुतालबा करता है। सरकारी रास्ते पर असले से लेस गार्ड्स रिहायशियों को रोककर उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं, जो कि कानून नाफिज करने वालों के लिए भी सवालिया निशान है। आज बासर अफराद ने मिट्टी की ट्रालियां डालकर रॉयल गार्डन के रास्ते को मुकम्मल बंद कर दिया, जिसकी वजह से तमाम रिहायशियों को शदीद मुश्किलात का सामना है और हमने उनके खिलाफ थाना सिटी गोशरा में दरख्वास्त भी दायर की, लेकिन आज भी अमल दरामद ना हुआ। रिहायशियों ने IG पंजाब, RPO फैसलाबाद, DPO टोबा से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया। गैम्बर उकाड़ा कैंट आबिद फरीदी गैम्बर प्रीमियर लीग का शानदार आगाज। गैम्बर उकाड़ा कैंट ग्राउंड में मेहमान खुसूसी वाइस चेयरमैन कंटोनमेंट बोर्ड नदीम अनवर भट्टी, राजा मुबशर जंजुआ, चौधरी उमैर खादिम ने अपने हाथों से टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। तमाम टीमों से मुलाकात की, टूर्नामेंट में टीम के साथ भरपूर तावन किया। मेहमान खुसूसी वाइस चेयरमैन कंटोनमेंट बोर्ड नदीम अनवर भट्टी का कहना था कि इंशाल्लाह ऐसे टूर्नामेंट यहाँ पर होते रहेंगे, जिससे नौजवान नस्ल नशे से दूर रहेगी। इस मौके पर इंतजामिया सलमान हैदर भट्टी, आफ्ताब शाह, शफीक जट, नबील किंग, हमीद जट, हसीब कंबो, अब्दुल रहीम बलोच, हामिद जट, मुदस्सिर बलोच, उमर मुदस्सिर धोनी ने मेहमान खुसूसी वाइस चेयरमैन कंटोनमेंट बोर्ड नदीम अनवर भट्टी, राजा मुबशर और चौधरी मीर खादिम का शुक्रिया अदा किया।
रुख करते हैं शिकारपुर का शिया उलमा कौंसिल की और उनकी ज़ैली तंजीम जाफरिया स्टूडेंट की जानिब से सानिहा जामिया मस्जिद पेशावर के खिलाफ एहतजाजी रैली मुजाहिरा किया गया। मुलव्विस दहशतगर्दों को गिरफ्तार करके उन्हें सख्त से सख्त सजा देकर शोहदा के वुरसा से इंसाफ किया जाए। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ सुधीर खुखरानी से। जी सुधीर, मजीद तफसीलात से आगाह कीजिए। जी, मैं आपको बताता चलूं कि शिया उलमा काउंसिल जिला शिकारपुर और उनकी ज़ैली तंजीम जाफरिया स्टूडेंट्स की जानिब से सानिया जामिया मस्जिद पेशावर खिलाफ पीर वासिल शाह से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली गई। प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड और बैनर उठा रखे थे जिन्होंने इसराइल मुर्दाबाद और दहशतगर्दी मुर्दाबाद के शदीद नारेबाजी की। शफकत हुसैन जतोई, मौलवी मुश्ताक अहमद नजबी, मौलवी गुलाम जाफर मशहदी व दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि सानिया पेशावर अलमनाक वाक़या है जिससे पूरी मुसलमान कौम सोग में मुब्तला है। उन्होंने कहा कि आखिर शिया फिरके को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है। मुकर्रिबीन ने मुतालबा करते हुए कहा कि सानिया पेशावर के मुजरमों की गिरफ्तारी और उनके सहूलतकारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए और शोदा के वरसा से इंसाफ किया जाए। कैमरामैन इल्ताफ हुसैन खखरानी के साथ ब्यूरो चीफ सुधीर खखरानी, ऑन टीवी न्यूज शिकारपुर। खबर शामिल करते हैं सजावल से। सिंध की तारीखी और 103 साला कदमी मदरसा दारुल फ़िरोज़ अलकासमिया में फजाला की सालाना दस्तारबंदी की बाबरकत और पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई। सालाना तकरीब में सिंध भर से आए हुए उलमा कराम, हाफिज और हज़ारों अफराद शरीक हुए, जबकि रवां साल मदरसा दारुल फ़िरोज़ अलकासमिया से 75 उलमा कराम को दर्स तंजीम की तालीम मुकम्मल करने पर और 35 से ज़ायद हाफिज कराम को कुरान पाक हिफ्ज़ करने पर दस्तार पहनाई गई। तकरीब में हदीस की किताब बुखारी शरीफ का आखिरी सबक मदरसा दारुल फ़िरोज़ अलकासमिया के शेख अल हदीस मौलाना मोहम्मद सालेहा अल हद्दाद ने पढ़ाया, जबकि शेख अल हदीस मौलाना मोहम्मद सालेहा अल हद्दाद ने हदीस का दर्स शुरू होने से कबल हाज़रीन मजलिस को नसीहत करते हुए कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के सबसे सही किताब बुखारी शरीफ का दर्जा कुरान शरीफ के बाद सबसे पहले है। उन्होंने कहा कि बुखारी शरीफ के ख़त्म की मजलिस इंतहाई बाबरकत मजलिस है और इस रूहानी मजलिस में दुआएं कबूल होती हैं, इसलिए अपने वतन पाकिस्तान की हिफाजत, मुसलमानों की मदद और नुसरत के साथ अपने लिए भी दुआएं मांगी। सियालकोट से अहम खबर से आपको आगाह करते चले। डॉक्टर शहजाद नसीम की रिपोर्ट के मुताबिक शाहपुरा रोड पर वाक़या निजी फैक्ट्री में आग लग गई। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1112 की फायर फाइटिंग टीम मौके पर पहुंच गई, आग पर काबू पा लिया। इमरजेंसी ऑफिसर नवीद इकबाल और रीजनल इमरजेंसी ऑफिसर सैयद आबिद कमाल भी मौके पर मौजूद रहे। आग बुझाने के सारे अमल की खुद निगरानी करते रहे। और न्यूज को तफसीलात बताते हुए सैयद आबिद कमाल का कहना है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। बहरहाल रेस्क्यू के अमले बर वक्त कार्रवाई करते हुए आग पर मुकम्मल काबू पा लिया और किसी किस्म का कोई जानी नुकसान न हुआ। खबर शामिल करते हैं टंडो मोहम्मद खान से। इशफाक हुसैन गोपांग की रिपोर्ट के मुताबिक मजलिस वहदत मुस्लिमैन और इमामिया स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन टंडो मोहम्मद खान की जानिब से सानिया पेशावर में बेगुनाह 50 से ज़ायद नमाजियों की शहादत और हुक्मरानों की नहली के खिलाफ जामिया मस्जिद अली से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली गई। एहतजाजी रैली मुहिब अली भुट्टो, महबूदुल हसन, मौलाना कासिम मतहरी, फरमान हैदर, सजाद अली डोमकी, साजन अली, सैयद शाह जमान कासमी की क़यादत में निकाली गई। रैली के शुरका से मौलाना अमीर हुसैन रहमानी और महमूदुल हसन ने खिताब करते हुए कहा कि ये सानिहा दरिंदगी और सफाकी की बदतरीन मिसाल है, जिसमें 100 के करीब नमाजियों को खून में नहलाया गया। ये सानिहा हुक्मरानों की नहली का खुला सबूत है। आखिर में रैली के शुरका की जानिब से मुतालबा किया गया कि सानिहा पेशावर में मुलव्विस अनासर के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए, नेशनल एक्शन प्लान पर अमल करते हुए दहशतगर्द और उनके सहूलतकारों को जड़ से खत्म किया जाए। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। साबिक वज़ीर आज़म मरहूम गुलाम मुस्तफ़ा जतोई के खिलाफ PPMPA ज़याल नज्जार की जानिब से बुरे भले लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया, जिस पर जतोई बरादरी के अफराद ने हैदराबाद के सहरिश नगर से रैली निकाल कर प्रेस क्लब तक एहतजाज किया। हैदराबाद से देखते हैं गुलाम हुसैन चांडियों की ये रिपोर्ट। हमारे कायद गुलाम मुस्तफ़ा खान जतोई नेशनल पीपल्स पार्टी के जो सरबरा कायद रहे हैं, इस वजह से कि वो ज़याल नज्जार ने मोरों के जलसे में लॉन्ग मार्च में उन्होंने एक गलत ज़ुबानी की, इस वजह से वो अपने लफ्ज़ वापस ले। हमारी यही गुजारिश है। उसने गुलाम मुस्तफ़ा जतोई को गद्दार करार दिया है, जैसे कि दुनिया को पता है हमारा कायद एक मोअज़्ज़ज़ शख्सियत था। ज़याल नज्जार पीपल्स पार्टी जो आहे जंहिं ग़लति लफ़्ज़ जतोई साहब जे ख़िलाफ़ ॻाल्हाइनि, उन जे ख़िलाफ़ असां जतोई बिरादर एहतजाज करियूं था, जेके हू पंहिंजा लफ़्ज़ वापसि वठे ऐं ग़लति लफ़्ज़ माना वापसि वठे। असांजी अपील आहे आसिफ़ ज़रदारी खे ऐं मोहतरम बिलावल भुट्टो के, फरियाल टालपुर के, अहिड़नि नासूर माण्हुनि खे ऐं करपट माण्हुनि खे पार्टी मां ख़ारिज कयो वञे। ज़याल नज्जार लाइ मैसेज आहे
तो मेहरबानी करे ये पंहिंजा लफ़्ज़ वापसि वठे। जे वापसि न वरितई त पूरे सिंध में एहतजाज जारी रहंदो ऐं जतोई ख़ानदान जेको जतोई बिरादरनि खे ॾुख जहिड़ा लफ़्ज़ ॻाल्हाइनि इन जी सख़्त लफ़्ज़नि में मज़म्मत करियूं। खबर शामिल करते हैं फूलनगर से। फूलनगर डीपीओ कसूर सुहेब अशरफ और डीएसपी पतो की आसिफ हनीफ जोया की खसूसी हिदायत पर थाना सिटी के एसएचओ मलिक जब्बार ने अपनी टीम के हमरा मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान जमील चौक बलोकी से मुलजिम के कब्जे से जहरीली शराब की 40 बोतलें बरामद करके मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम पुलिस को मतलूब था और बदनाम समाना मनशियात फरोश था। डीपीओ कसूर सुहेब अशरफ और डीएसपी पतो की आसिफ हनीफ जोया की खसूसी हिदायत पर एसएचओ मलिक जब्बार ने मनशियात फरोशों के खिलाफ शिकंजा कसते हुए जमील चौक बलोकी से मुलजिम नीला उर्फ अनिल मसीह के कब्जे से 40 बोतलें बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। जहरीली शराब पीने से हलाकतों में खदशा था, जिस पर थाना सिटी पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करके कीमती जानें बचा ली। आईजी पंजाब के हुक्म पर तहरीरी टेस्ट में कामयाबी हासिल करने पर पहले नंबर पर राना सुहेल जबकि दूसरे नंबर पर असलम भट्टी ने मैदान मार लिया, जबकि कसूर के बड़े बड़े ब्रिज गिर गए। 130 अफसरान फेल हो गए, जो कि जिला कसूर पुलिस अफसरान के लिए सवालिया निशान है। तफसीलात के मुताबिक आईजी पंजाब के हुक्म पर जिला कसूर के तमाम तफ्तीशी अफसरान इंचार्ज साहबान ASI से लेकर केयरिंग कैटेगराइजेशन इम्तहान लिया गया, जिसमें ट्रेनिंग ब्रांच और परलिस ट्रेनिंग सेंटर अफसरान और जिला पुलिस के आला अफसरान की जेर निगरानी मार्किंग हुई, जिसमें जिला कसूर में पहली पोजीशन साबिक एसएचओ सिटी फूलनगर राना सुहेल इंचार्ज CIA ने हासिल की और साबित किया कि वो आला तालीम याफ्ता और काबिल पुलिस ऑफिसर हैं, जबकि दूसरे नंबर पर साबिक एसएचओ थाना सदर फूलनगर असलम भट्टी ने हासिल की। इसके अलावा अजीम हफीज SI और तैयब यूसुफ ASI ने नुमाया पोजीशन हासिल की और कई नामी गरामी पुलिस अफसरान फेल हो गए। तकरीबन 130 के करीब अफसरान फेल हो गए, जो कि कसूर पुलिस अफसरान के लिए सवालिया निशान है। फाजलपुर से रिपोर्ट कर रहे हैं मलिक राजा मुख्तार होड़ा। मामूली रंजिश पर फाजलपुर शहर के 2 को बेदर्दी से कत्ल करके वकुए पर उनकी नमाज जनाजा में हजारों अफराद का शदीद एहतजाज, मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। जबकि नमाज जनाजा में अरकान असम्बली सरदार फारूक अमानुल्लाह खान दुरेशक, सरदार हसनैन बहादुर खान दुरेशक, साबिक चेयरमैन जिला कौंसल राजनपुर सरदार अब्दुल अजीज अल मरूफ, जगन खान दुरेशक, सरदार इब्रार खान दुरेशक सरदार जमील अहमद खान दुरेशक, सरदार लियाकत खान दुरेशक, सरदार शादो खान दुरेशक, राना मोहम्मद सैयद महबूब हुसैन बुखारी, पीरज़दा शमसुद्दीन शाह, सरदार शाहनवाज खान गोपांग, कासिम खान चंजन, खलील अहमद भट्टी, मलिक अब्दुल सत्तार किट, उस्मान खान शेरवानी, नसरुल्लाह खान दुरेशक, शेर बास खान मशहूरी, जिशान कुरैशी, आबिद खान गोपांग, जहूर हुसैन मस्तोई, हनीफ खान दुरेशक और मियां शाहिद समेत हजारों की तादाद में सियासी, समाजी, मजहबी, अंजुमन ताशान, प्रेस क्लब के ओहदेदारों, टीचर यूनियन के रहनुमाओं की बड़ी तादाद में नुमाइंदा शख्सियात ने शिरकत की।